Hey everyone, good afternoon. I'm sorry for the delay. How are you all doing today? Give me a quick confirmation if you guys are able to hear me, guys. जल्दी जल्दी एक confirmation दे दीजिए कि सुनाई दे रहा कि नहीं. Okay, so I hope the audio is okay. Today is our first class on sequence and series. Today we're going to start with arithmetic progression. My name is Amit Surana. I am an educator at Unacademy for over a year now. I've been teaching Quant. This is my Telegram group. If you haven't joined the group yet, please go ahead and do that. इसका link आपको description में भी मिल जाएगा. Click on that link using your phone and you will be joined into the group. Okay. All right. चलो start करेंगे, shall we? Hello Vipul. Hello Samarth. छोटा सेशन है समर्थ. बिफोर यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट, छोटा सा सेशन है, फटाफट खत्म करेंगे, ठीक है? चलो, लेट्स स्टार्ट विद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. हेलो आरूप. So what happens under arithmetic progression? We start with a single term and then we keep increasing that term by the same value. Yes, increasing that term by the same value. For example, let's say that I have 3. Okay, if I increase this 3 by this gap, ये जो भी gap है इससे अगर मैं increase कर रहा हूँ 3 को, तो क्या हो जाएगा? Let's say this ruler is 2 centimeters long. ठीक है, 3 सेंटीमीटर्स का एक लॉग है, उसके बीच में मैं 2 सेंटीमीटर्स का एक रूलर रख के आगे क्या हो जाएगा? 5. फर्दर अगेन 2 अगेन 5, 7, 9, 11, 13, राइट? सो दिस विल कीप गोइंग ऑन. करेक्ट है ना? इसको अपन क्या बोलते हैं? दिस इज व्हाट वी कॉल, दिस पर्टिकुलर थिंग इज व्हाट वी कॉल arithmetic progression, जहां पे हर टर्म के बीच में between every term if the difference is the same. Yes, or the best way to look at this would be what? The difference between the next term and the previous term. Nth term and n minus 1th term. Are you getting it? So 5 minus 3 is how much? 2. तो यहाँ पे in this case our first term normally represented by a or a1 or t1, जो भी पहला term जो है अपना first term is what? 3. Now between 3 and second term there is a gap of 2, correct? So if I add d to it, let's say if my first term is a, यहाँ पे a क्या है? 3 है. Common difference d क्या है? 2 है, क्योंकि second term is 5 and so on. So what is my second term here, guys? अगर मेरा पहला टर्म a है, दूसरा टर्म a2, उसके बीच का गैप जो है वो d है. What will be my second term? जल्दी से बताओ. जल्दी. अगर पहला टर्म a है तो सेकेंड टर्म क्या होगा? a plus d. वेरी गुड मंजोत, है ना? a plus 1 times d. दोबारा अगर नेक्स्ट टर्म का मैं देखूं, नेक्स्ट टर्म वापस क्या होगा? प्लस d होगा. तो क्या इसको अपन बोल सकते हैं कि a plus d, जो प्रीवियस टर्म था a plus d, उस पे दोबारा d, so a plus 2d. Ultimately what do you get? The difference between any two terms, of an arithmetic progression will be that many times of the difference, correct? फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म में कितना डिफरेंस है? 2d का. yes, so first term, can you tell me first term और 8th term में कितना डिफरेंस होगा? फर्स्ट टर्म और 8th टर्म में कितना डिफरेंस होगा? बताओ जल्दी से. एट्थ टर्म और फर्स्ट टर्म में कितना होगा? 7 टाइम्स d का डिफरेंस होगा, है ना? क्यों? क्योंकि a8 जो है, a8
will basically be what? A7 plus D या A6 plus 2D या A3 plus 5D, A2 plus 6D 7D या ऐसे, करेक्ट? 6D और A plus 7D. तो A plus 7D if I do, I get A8. So can I say any nth term of an arithmetic progression, nth term of an arithmetic progression is basically the first term plus n minus 1 times the D? Would you agree? Nth term of an arithmetic progression is going to be what? The first term plus n minus 1 into D. Eighth term was A plus 8 minus 1 into D, है ना? Yes, so nth term would be what? A plus n minus 1 into D. Understood? Now in arithmetic progression, we have situations जहां पे, क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस सेम होता है. Yes, look at this. If your series is in arithmetic progression, अगर मेरे को इन 3 टर्म्स का अरिथमेटिक मीन निकालना है, एवरेज, अरिथमेटिक मीन एवरेज निकालना है, वो कितना होगा? What is the arithmetic mean of 3, 5 and 7? जल्दी से बोलो. 3, 5 और 7 का जो एवरेज है, अरिथमेटिक मीन है, वो कितना होगा? Anyone? 3? नहीं, 5. Yes, so arithmetic mean is what? Sum of the terms, that is 3 plus 5 plus 7 by number of terms, correct? This is how much? 15 by 3, which is 5. Yes. Now arithmetic mean of a series or of an arithmetic progression, आपका average will be equal to the median. Median मतलब क्या? Middle term. Yes, जैसे 3, 5 और 7 का middle term क्या है? 5. ये हो गया अपना average. This will also be equal to first plus last term का average. फर्स्ट और लास्ट टर्म का एवरेज. 3 plus 7, 3 plus 7 by 2 कितना? 10 by 2, 5. आ रहा है समझ में? Yes. So if I ask you what will be the average of the first 6 terms of this particular series, इस सीरीज का फर्स्ट 6 टर्म्स का एवरेज कितना होगा? जल्दी से बताओ. फर्स्ट 6 टर्म्स का एवरेज कितना है? जल्दी बताओ इसी सीरीज का. Manjot says 8. Others? Manjot has changed it to 9. Ayush says 8. तो फर्स्ट 6 टर्म्स क्या होंगे? फर्स्ट 6 टर्म्स would be these: 3, 5, 7, 9, 11, 13. करेक्ट? 3, 5, 7, 9, 11, 13. या तो मैं इसका मिडिल टर्म निकालूं, बट क्योंकि ये इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, मिडिल टर्म यहां पे रहेगा. तो 7 और 9 का एवरेज which is nothing but 5 और 11 का एवरेज. समझ रहे हो? इक्वी डिस्टेंट टर्म्स ले रहे हैं. 5 और 11 का एवरेज which is nothing but 3 और 13 का एवरेज. सारे सेम है ना? ऑल ऑफ दीज आर सेम. 8, 16 by 2, 16 by 2, 16 by 2. तो सेंटर दिस इज मीडियन. सेंटर से अगर आप इक्वल गैप वाले टर्म्स लेते हो, एक टर्म इधर एक टर्म इधर, उसका एवरेज वो भी सेम ही रहेगा. 2 टर्म इधर 2 टर्म इधर, उसका एवरेज भी सेम होगा. 3 टर्म इधर 3 टर्म इधर, उसका भी सेम ही रहेगा. डन? आ गया क्या समझ में सबको?
क्लियर ना, कोई डाउट नहीं है ना इसमें? चलो अब आगे बढ़ेंगे, वी लुक एट द सम। ठीक है, सम पे देखेंगे कि सम ऑफ द टर्म्स क्या होता है। तो nth टर्म अपन ने ढूंढ लिया, सम ऑफ टर्म्स। लुक एट दिस, ये वही वाला एग्जांपल लेंगे, 3 5 7 9 11। ठीक है, विल टेक दीज नंबर्स। इनका अगर मेरे को सम ढूंढना है, इफ आई वांट टू फाइंड द सम ऑफ दीज 5 टर्म्स, can I say that is nothing but average of these 5 terms into number of terms which is 5? क्योंकि हमें पता है कि एवरेज क्या होता है, एवरेज क्या होता है, सम ऑफ द टर्म्स बाय नंबर ऑफ टर्म्स, है ना? सम ऑफ द टर्म्स बाय नंबर ऑफ टर्म्स, करेक्ट। या तो मैं इनको बैठ के मैनुअली ऐड करूं, 3 + 5 8 + 7 25 सॉरी 15 + 20 35, या तो ऐसे ऐड करूं मैनुअली, या फिर ऐसे कर सकता हूं। एवरेज मेरे को कैसे मिलेगा, हाउ विल आई फाइंड द एवरेज? बाय एडिंग द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, है कि नहीं? एवरेज क्या है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म का एवरेज। सो व्हाट इज दिस, 3 + 11/2 एवरेज ऑफ द फर्स्ट दीज 5 टर्म्स into 5. So this is how much, 14/2, 7 into 5 35. 7 क्या है, 7 is your median also। ठीक है, आई होप ये आपको आ रहा है समझ में। मैं यहाँ पे सम का फॉर्मूला जो है, सम का फॉर्मूला वो प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं, है ना? तो यहां पे फर्स्ट टर्म अपना 3 है, फर्स्ट टर्म इज 3। लास्ट टर्म कैसे ढूंढेंगे, हाउ विल वी फाइंड लास्ट टर्म गाइस? लास्ट टर्म इज व्हाट, 3 प्लस कितना, 5 - 1 into 2, करेक्ट? एग्रीड क्या? फर्स्ट टर्म 3 है, लास्ट टर्म क्या है, 3 + 5 - 1 into 2, है ना? इसका एवरेज निकालना है, इसका एवरेज निकालना है, और क्या करना है, n से मल्टीप्लाई करना है, मतलब n क्या है, 5। ये रहा आपका फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला। सम ऑफ n टर्म्स इज बेसिकली n/2 इनटू, ये a है, ये भी a है, सो a + a 2a प्लस ये क्या है, n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस d। ठीक है ना? ये फॉर्मूला रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, प्लीज डोंट रट्टा मारो बाय एनी फॉर्मूला। मैं सब में आपको लॉजिक समझा रहा हूं, आई एम शोइंग यू लॉजिक इन एवरी पर्टिकुलर सिनेरियो, ओके? So what is sum of n terms? Sum of n terms is nothing but n/2 into 2a plus n-1 into d, which is basically nothing but first term in और second term का जो average है, first term plus last term by 2 into number of terms. First term plus last term by 2 into number of terms. First term plus last term by 2, ये क्या है, ये इनका average है। ओके ना? कोई डाउट नहीं है ना यहाँ पे? ठीक है। एंड इफ यू टेक द डिफरेंस, ये अपन ने ऑलरेडी बात कर ली है। अगर मैं कोई भी सीरीज का 8th टर्म और उसी सीरीज का 5th टर्म का डिफरेंस निकालूं तो क्या होगा, वो 8th टर्म माइनस 5th टर्म ऑफ द सेम सीरीज, दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट? जल्दी से बताओ। 8th टर्म और 5th टर्म के बीच का गैप कितना होगा? 8th टर्म को अपन कैसे लिख सकते हैं? फर्स्ट टर्म प्लस 7d। 5th टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं? फर्स्ट टर्म प्लस 4d, क्योंकि ये माइनस है, यहां पे माइनस हो गया, प्लस a माइनस a कैंसल, 7d माइनस 4d इज व्हाट? 3 टाइम्स d, करेक्ट? वेरी गुड। a3 नहीं मंजूर, A3 नहीं, कॉमन डिफरेंस आएगा ना। कॉमन डिफरेंस कितनी बार ऐड हो रहा है, इसका क्या मतलब हो गया? अगर ये A5 है, A6, A7, A8, 6 कहां चला गया? ठीक है, अभी मैं यहां पे क्या कर रहा हूं? A5 पे D ऐड कर रहा हूं, A6 पे दोबारा से D ऐड करूंगा,
A8 से 8 पे दोबारा से D ऐड करूंगा तो A5 और A8 के बीच का कितना गैप है 1 2 3D. ओके समझ गए. हाँ आयुष, अरे थैंक यू आयुष, थैंक यू, आपका कॉम्प्लीमेंट मैंने अभी पढ़ा, थैंक यू. सो एक्स्थ टर्म और वाइथ टर्म का बीच का जो डिफरेंस है, एक्स्थ टर्म और वाइथ टर्म का बीच का जो डिफरेंस है, दैट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू व्हाट, x माइनस वाई इंटू डी. समझ गए, उस पोजीशन का डिफरेंस इंटू डी. ठीक है, अब बहुत हो गया, बातचीत बहुत कर ली, क्वेश्चन करेंगे. चलो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं क्वेश्चन को. लेट्स स्टार्ट. ठीक है, ये रहा अपना पहला क्वेश्चन. एक काम करते हैं, इससे नहीं चालू करते अपन, सबसे इजी वाले क्वेश्चन से चालू करते हैं, जो कि ये रहा. चलो ये वाला कोशिश करो जल्दी से, क्विकली ट्राई दिस. ये वाला इजी वाला क्वेश्चन पहले करेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे. ठीक है, आपका जो सीक्वेंस एंड सीरीज है, एपीजीपी जो है, सीक्वेंस एंड सीरीज इज जस्ट लाइक अलजेब्रा. इफ यू नो द बेसिक्स, plus if you have a good perception, good skill of changing the way the question looks like, then sequence and series is a literal piece of cake. ठीक है, it's a literal piece of cake. Understood? Okay. This is my attempt at drawing a piece of cake with a cherry on top. ठीक है, Manjot, Varshini, Ayush, Vedant, Neha are saying B5. All right, super. So what do we have to do? We have to find the number of terms in the following AP. Yes, number of terms. कितने terms होंगे in this AP? Okay. So how do we do this? minus 7.2 से 7.2. first things first, our first term is how much? minus 7.2. our second term is how much? minus 3.6. so if I want to find the common difference, what will I do? A2 minus A1. it is always the next term minus the previous term. ठीक है, तो next term क्या है? A2 which is minus 3.6 माइनस ऑफ माइनस 7.2 है ना. तो ये कितना हो गया? माइनस 3.6 प्लस 7.2 विच इज प्लस 3.6. सो द कॉमन डिफरेंस इज व्हाट? प्लस 3.6. तो ये 3.6 3.6 3.6 के रेंज में बढ़ रहा है. ठीक है, नाउ हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? नंबर ऑफ टर्म्स कैसे ढूंढेंगे अपन यहां पे? इफ आर nth टर्म इज 7.2, nth टर्म इज 7.2, a हमें पता है माइनस 7.2, d हमें पता है प्लस 3.6 है. सो वी नो nth टर्म कैन बी गिवन एज फर्स्ट टर्म प्लस n minus 1 into d. So 7.2 is equal to minus 7.2 plus n minus 1 is what we don't know. D is what? 3.6. So what do you get? If you take minus 7.2 to the other side, 7.2 plus 7.2 is 14.4, is nothing but n minus 1 into 3.6. So what do you get? N minus 1 is 14.4 by 3.6 is how much? 4. So what is n? N is 5. This is your traditional way of finding it out. Okay, this is the traditional way of finding it out. Understood? Yes. Now what you can do is directly look at this. Directly look at this. That 7.2 plus 3.6, the next term has to be 0. So this is how our series will look like, right? Minus 7.2 minus 3.6, then the next term will be 0, then plus 3.6, then plus 7.2.
balancing it out. Yes, so there has to be how many numbers here? Odd number of numbers. Understood? Odd number of terms. अगर बीच में कभी भी जीरो आता है, अगर बीच में कभी भी जीरो आता है, प्लीज अंडरस्टैंड, इफ अगर इसका एवरेज आपका जीरो है, -7.2 प्लस 7.2 0, -3.6 प्लस 3.6 0, तो बीच में एक जीरो आएगा. यस, सो इवन नंबर ऑफ टर्म्स हियर प्लस even number of terms here is even number of terms plus एक जीरो आएगा. So odd number will be our answer. ठीक है, वेरी गुड गाइस, सुपर. तो चलो अभी दोनों मेथड से कर लिया, लॉजिक से भी कर लिया, एंड वी हैव आल्सो डन इट यूजिंग द फॉर्मूला. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विकली ट्राई दिस आउट. लेट्स गो. केक मत बनाओ, खाने का मन करता है. ठीक है, अच्छा ऐसे वैसे अगर वीडियो पे लाइक नहीं किया अभी तक तो कर देना. ठीक है, अगर वीडियो पे अभी तक लाइक नहीं किया तो बिना बोले कर दियो. ओके, चलो करिएगा जल्दी. वेदांत सेज बी. करिए करिए, प्रबंध करिए भाई. मैं अपनी पानी की बोतल लाना भूल गया, उसका प्रबंध कर दो प्लीज. भाई चश्मे पे स्क्रैच हो गया. प्राची, वर्षिनी, आयुष, मंजोत, नेहा, श्रेयसी, विपुल are all saying B. Very good. बहुत बढ़िया guys, very good. Everybody is saying B 20. So what are they saying? They're saying the second term of an AP is 42. Second term is 42. Kth term and K plus 1th term है ना, K plus 1 और K मतलब क्या, दोनों consecutive terms है. बोथ आर कंसेक्यूटिव टर्म्स. ये क्या है, द डिफरेंस इज 21. बेसिकली ये क्या है, अपना कॉमन डिफरेंस है ना. तो अगर कॉमन डिफरेंस 21 है तो क्या मैं फर्स्ट टर्म ढूंढ सकता हूं. फर्स्ट टर्म क्या होगा, 42 माइनस 21, 21. यस, तो अब फट से करो. क्या बोल रहे हैं, nth टर्म 420 है तो n बताओ. 420. वाह, If our nth term is 420, अगर आपको 21 का टेबल आता है तो अपन आराम से कर सकते हैं. Because the first term is also 21, common difference is also 21. ये 21 का टेबल चल रहा है, मतलब nth term n is nothing but 420 by 21 which is 20. ये लॉजिक से, ठीक है, ये लॉजिक से. बट अगर फॉर्मूला से करना है तो कैसे करोगे. nth term is nothing but first term plus n minus 1 into d. 420 is nothing but 21 plus n minus 1 into 21. So what do we get? We get 21 into n minus 1 is 420 minus 21 which is, ऐसे ही रहने दो, कोई नहीं करेंगे subtract. So n minus 1 is 420 minus 21 by 21 which is 20 minus 1. If n minus 1 is 19 तो n क्या हो गया, 20. सेम चीज ये लॉजिक से करी अपन ने, ये फॉर्मूला से करा अपन ने. बेसिक्स याद रहना, ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में लॉजिक शायद हाथ दे दे
बट आपको कॉन्सेप्ट याद रहेगा, ठीक है। ओके, चलो अगला। ये कॉलेज का रोल, आपका कॉलेज का रोल नंबर 420 था। हाँ भाई, फॉर्मूला रट्टा नहीं मारना, हमें कभी भी फॉर्मूला रट्टा नहीं मारना, समझना है फॉर्मूला को, ठीक है। दुनिया में कैसा भी फॉर्मूला आ जाए उसे बैठ के रट्टा मत मारियो, तो फिर वही स्कूल में जो किया था अपन ने वही रिपीट होगा, कोई मतलब नहीं है उससे। ये क्या बात कर रहे हो आप लोग? काला पानी, ये तो बहुत गलत बात हुई। चलिए लेट्स सॉल्व दिस। Varshini says 544. Very good, Varshini. How about others? Very good, Shreyashi, Vipul, superb. Ayush says A, but he is not sure. तो आधा गोला बनाएंगे, पूरा नहीं, आधा गोला बनाएंगे, ठीक है। वेदांत से C. इससे तो काम नहीं चलेगा प्राची। इससे काम नहीं चलेगा, इससे फिर अलग सीक्वेंस सीरीज चलेंगे, ये वाली नहीं चलेगी। ठीक है, चलो लेट्स लुक एट दिस। A3 थर्ड टर्म क्या है अपना? थर्ड टर्म इज 8, एथ टर्म इज 28। इनको अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, ये स्टैंडर्ड मेथड से कर रहे हैं पहले, ठीक है, स्टैंडर्ड मेथड। इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा? आई विल गेट 8 minus 3 which is 5 times D. If 5 times D is 20, तो D क्या हो गया आपका? 4 हो गया। Yes, what do we have to do? We have to find the sum of these terms, A1 से लेके A17। तो पहले A1 ढूंढेंगे। A1 कैसे ढूंढेंगे? A3 में से अगर मैं 2D निकाल दूं तो मेरे को A1 आ जाएगा। यस, सो 8 में से मैं 2 times 4 8 निकाल लूंगा, तो मेरे को क्या मिला कि मेरा पहला टर्म 0 है। माई फर्स्ट टर्म इज 0। यस, इसी से मैं अगर 17th टर्म निकालना चाहूं तो वो भी कर सकता हूं। कैसे? 0 plus 16 times द कॉमन डिफरेंस, है ना। तो अपना 17th टर्म क्या हो गया? 64। एग्रीड? यस, तो अब हमें क्या करना है? सम निकालना है। सो इफ यू वांट टू डू इट यूजिंग द फॉर्मूला, सम का फॉर्मूला क्या होगा? सम ऑफ n टर्म्स, यहाँ पे n 17 है, फॉर्मूला लिख ही लेता हूं। सम ऑफ n टर्म्स इज n by 2 into 2a plus n minus 1 into d, where n is 17, so 17 by 2 into 2 times 0 plus n minus 1, 16 times 4. Yes, so क्या हो गया? Sum of 17 terms is nothing but, ये तो 0 हो गया, ये चला गया, this is 2 times, so 17 into 32. Got it? 17 3 times is 51, so 510 plus 64, oh sorry, plus 34 is how much? 544. तो ये कितना हो गया? 544. दिस इज यूजिंग योर स्टैंडर्ड मेथड फॉर्मूला। अगर नहीं फॉर्मूला नहीं लगाना है, यू फाउंड आउट द फर्स्ट टर्म, यू फाउंड आउट द लास्ट टर्म, तो सम इज व्हाट? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2 इनटू नंबर ऑफ टर्म्स। यस, तो ये क्या हो गया?
0 plus 64 by 2 into 17, which is the same 32 into 17, 544. Okay, alternatively what we can do, ये दो मेथड तो है, ये दो मेथड आ गया समझ में? एवरीवन डिड यू अंडरस्टैंड? पहला टर्म निकालो, डी निकालो, सब करो, है ना? वेरी गुड। अभी ये सब कौन करता है? ये सब बहुत बकवास है। देखो मेरा लॉजिक सुनो, ध्यान से सुनो, ठीक है? 17 टर्म्स है। कितने टर्म्स है अपने पास? 17 टर्म्स है ना? 17 टर्म है। इसका मिडिल टर्म, मीडियन क्या होगा? अगर 17 टर्म्स है अपने पास, 17 टर्म है, तो मीडियन जो मिडिल वाला टर्म होगा वो क्या होगा? जल्दी से बोलो, मैं आंखें बंद कर रहा हूं तब तक जल्दी से बोलो क्या होगा? 9। इट विल बी 8, A8 है ना? सॉरी A9, यस A9 होगा, करेक्ट? समझ गए? 17 टर्म्स का मिडिल टर्म मतलब क्या? 8 टर्म्स इधर, 8 टर्म्स इधर, बीच में 9th टर्म। यस, तो व्हाट इज 9th टर्म? 9th टर्म इज नथिंग बट 8th टर्म जो कि दे रखा है, और डी जो अपन ने ढूंढ लिया। यस, सो व्हाट इज 9th टर्म? 8th टर्म 28, और डी क्या है? 4। 28 प्लस 4 कितना? 32। यस, इससे हमें क्या मिल गया? एवरेज मिल गया। आवर एवरेज इज 32, सो सम ऑफ 17 टर्म्स इज गोइंग टू बी व्हाट? एवरेज इनटू द नंबर ऑफ टर्म्स। खत्म। क्लियर? कौन सा मेथड आपको सही लगा बताओ? विच मेथड डू यू थिंक यू आर कंफर्टेबल विथ? स्टैंडर्ड मेथड, फॉर्मूला? स्टैंडर्ड मेथड में फॉर्मूला, स्टैंडर्ड मेथड में फाइंडिंग आउट द लास्ट टर्म, और ये मीडियन वाला मेथड। मीडियन वाला मेथड सबसे इजी लगा ना? मीडियन वाला मेथड सबसे इजी लगा। पहला टर्म ढूंढने की जरूरत नहीं, आखिरी टर्म ढूंढने की जरूरत नहीं, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, लॉजिक से कर लिया पूरा क्वेश्चन अपन ने। ठीक है? मेरे जैसे जीनियस क्वेश्चन ही नहीं करते, मेरे जैसे जीनियस जाके सो जाते हैं मेरे जैसे जीनियस जाके सो जाते हैं। 2 days रिमेनिंग, 2 दिन है आपके पास, बचा ले अपने शेयर को। 2 days रिमेनिंग, सिर्फ अनअकैडमी बच जाएगा। ध्यान से सुनो, 2 दिन बाकी है फॉर दिस ऑफर। प्लस और आइकॉनिक के लिए 10% ऑफ तो कभी भी, कोई भी दिन आ जाओ अपन दे देंगे, है ना? कोई भी दिन पे आ जाओ दुकान पे, अपन 10% ऑफ तो देंगे, क्योंकि सुराना लाइव आप यूज करोगे, है ना? बट अब की बार बिग बिलियन डे पे 10% एडिशनल डिस्काउंट मिल रहा है आपको। तो सुराना लाइव पे जो 10% मिलता है, वो इसके ऊपर 10% का और डिस्काउंट मिल रहा है बिकॉज ऑफ अनअकैडमी, और एक्सटेंशन भी मिल रहा है। यस, मुफ्त का, फ्री का एक्सटेंशन भी मिल रहा है। So the 3 offers going on right now at the same time. Pick up a package that you think will be best useful for you, 24, 18, 12 और plus और iconic, and ले लो फटाफट। ठीक है? Yes. चलो अगला क्वेश्चन चलेंगे। Let's move on to the next one. क्या पूछ रहे थे आप लोग? नहीं विपुल, ऐसा अगर हर कोई अच्छी आइडिया को ड्रॉप कर देगा तो अपन क्या करेंगे? हर कोई विपुल की तरह सोचने लग गया कि ये आइडिया तो मेरे को आया था पर मैंने ड्रॉप कर दिया, ऐसे नहीं कर देंगे ना। करेक्ट मंजोत, आज ही ये रख लो विपुल, आज ही अनअकैडमी का बर्थडे है।
इतना गिफ्ट दे रहा है तो आज ही होगा अनअकैडमी का बर्थडे। बस यही डिफरेंस है आप में और मस्क मेलन में, एलन मस्क में, इलॉन मस्क। चलिए गाइस क्विकली ट्राई करिए ये वाला। मेरे को क्या मिला रिटर्न गिफ्ट में? अरे मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करता भाई, मैं 0 एक्सपेक्टेशंस के साथ जाता हूं, मेरे को कुछ चाहिए ही नहीं, मेरे को जो मिल रहा है जैसे मिल रहा है ठीक है अपन। हाँ भाई, हो रहा क्या सॉल्व? विपुल डी बोल रहे हैं कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड। ये मेरी अनुराधा नहीं हो सकती, तो ये अनुराधा इसकी बहन है। विपुल, श्रेयसी, मंजोत, नेहा सब डी बोल रहे। क्यों बोल रहे भाई, क्या हो गया? What happened? A data analyst wants to find a term in the data set whose elements, है ना? तो क्या है? 11, 8, 5, 2, -1 ऐसे चल रहा अपना सीरीज। फर्स्ट टर्म स्टैंडर्ड मेथड में करेंगे पहले। स्टैंडर्ड मेथड में फर्स्ट टर्म अपना 11, सेकेंड टर्म अपना 8, कॉमन डिफरेंस क्या हुआ? 8 - 11 -3। ओके, अब हमें ढूंढना है कि nth टर्म -90 है। nth टर्म अगर -90 है तो n का वैल्यू क्या है? nth term is nothing but first term plus n-1 into d. So -90 has to be equal to 11 plus n-1 into what is d? -3. If I take 11 to the other side, what will I get? I will get -79 is equal to n-1 into -3. माइनस माइनस कैंसल, आपको आ रहा है n-1 is what? 79/3. और what is n? n is 79 plus 3/3 which is 82/3. This will be equal to how much? 82/3 मतलब कितना? (82/3) कितना गाइस? 27.33 है तो आंसर, है तो आंसर। गलत है क्या ये? इज दिस रॉन्ग? ये क्यों आ रहा है? सॉरी, मैं गलत किया। दिस वोंट बी 79 -90 -11 is -1 not 1. सॉरी, -1 not 1. सो माइनस माइनस कैंसल, ये क्या हो गया? 101/3. So 101 plus 3 is 104/3, which is how much? 102. 102 is 34 times. So this is going to be what? 34.33. Correct? 34.66. तो अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं ना, 34.66 मतलब 35 होगा, है नहीं कि 34 होगा? दोनों नहीं होगा। क्यों? क्योंकि -90 is not a part of the sequence. Got it? -90 इस सीक्वेंस का पार्ट ही नहीं है।
तो ना तो 34 है ना 35 है, ये बीच के है, ना तेरा ना मेरा 34.66 ले ले भाई, ऐसे नहीं चलेगा. So what's the answer? Cannot be determined. Why? Because this does not exist in the series at all. Okay. What is the other way of looking at it? थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे. लॉजिक देखो, कॉमन डिफरेंस क्या है? 3 का डिफरेंस है ना, 3 के डिफरेंस में चल रहा है. कॉमन डिफरेंस 3 का है. सारे टर्म्स, ऑल द टर्म्स दैट वी सी हियर, ऑल टर्म्स आर नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3. करेक्ट. सारे जो टर्म्स है, 11 3 से डिविजिबल नहीं है, 8 3 से डिविजिबल नहीं है. सो ऑटोमेटिकली बाकी सारे टर्म्स भी डिविजिबल बाय 3 नहीं होंगे. तो -90 which is a multiple of 3 या multiple of -3 will not be a part of the sequence. खत्म. सिंपल सा लॉजिक कि कुछ भी कर लो, -90 को आप कहीं पर भी नहीं बीच में घुसा सकते. ठीक है, डन. क्या जे मैंने इतना सारा जो लिखा इधर वो आ गया क्या समझ में? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स गो. क्या भेजा? एक गुंडे भैया, मेरी अनुराधा को थोड़ा आराम से, वो बहुत नाजुक है. ये श्याम बाबू भैया को बेचने क्यों निकला? वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स, ये श्याम बाबू भैया को बेचने क्यों निकला? मतलब गोला खा रहे बीच में, पानी पूरी खा रहे थे, गोलगप्पे खा रहे थे, बीच में आता है. लगता है ये अनुराधा मिलिट्री वालों के भी पैसे खा गई. है 150 वाला तो है ही है. देवी प्रसाद अभी अभी चल बसे. हाँ भाई, आंसर इसका श्रेयसी से सी. 25 21 दिन में पैसा डबल. चीख चीख के सबको बता दो, सबको स्कीम बता दो. प्राची से सी नहीं हो रहा ये वाला. तो देखो x क्या है, x के टर्म्स लिखते पहले. ठीक है, x के क्या क्या टर्म्स होंगे? वी हैव 5 8, मतलब अगला टर्म क्या होगा? 3 का डिफरेंस में 11 14 17 20 23 ऐसे चलेगा. करेक्ट, 3 के डिफरेंस में चल रहा है. 8 11 14 17 20 23 सो ऑन. y का क्या है? y का
3 फिर 7, मतलब 4 का डिफरेंस है। 3, 7, 11, 15, 19, 23 सो ऑन। अब यहां पे क्या करना है हमें? दे आर सेइंग इफ k is the number of common terms, k is the number of common terms in x and y। common terms क्या क्या है? 11 कॉमन है, फिर 23 कॉमन है। तो अपन इधर क्या कर सकते हैं? What can we do? Let's say अगर 11 से स्टार्ट होता, तो कितने के डिफरेंस में मिल रहा हमें? अगर k का अपन एक सेट बनाते, k का एक सेट बनाएंगे, ठीक है, उसमें क्या क्या रहेगा? 11 रहेगा, फिर 23 रहेगा। तो अगला टर्म क्या होगा? जल्दी से बोलो। What will be our next term? 11, 23, फिर नेक्स्ट टर्म कौन सा कॉमन होगा? 35, 12 के डिफरेंस पे चल रहा है ना, 12 के डिफरेंस पे 35 एंड सो ऑन। यस, हमें क्या ढूंढना है? इसमें कितने टर्म है? तो अपन क्या करेंगे? लास्ट टर्म पे चलते हैं। यस, लेट्स गो फॉर द लास्ट टर्म, कि ऐसे केस में लास्ट टर्म क्या हो सकता है। यस, सो व्हाट डू वी डू? लुक एट दिस, एवरी थर्ड टर्म हियर, एवरी थर्ड टर्म, 1 2 3 थर्ड टर्म, 1 2 3 third term, so every third term is common here. Say yes if you agree with this. Every third term 11, फिर 23, फिर 35 भी कैसे आएगा? 23 plus 4 27 plus 4 31 plus 4 35। तो every third term is common, correct? Every third term, yes। तो ऐसे करके आखिरी में, बट ऊपर का देखना पड़ेगा हमें। वी हैव टू गो फॉर द टॉप पार्ट, क्योंकि इसमें कम, ज्यादा नंबर्स इसमें है, इसमें कम है क्या? हाँ, तो ये वाला देखेंगे, इसका नंबर ऑफ टर्म्स दोनों में इक्वल है। सो हाईएस्ट कहां पे जाएगा? यहां पे जाएगा। तो यहां पे देखते हैं, ऊपर वाले में देखते हैं, ठीक है, नॉट नीचे वाला, ऊपर वाला देखेंगे अपन इनफैक्ट। तो क्या हो रहा? हर इसके बाद 11 के बाद अपन देखेंगे कितने गैप पे आ रहा? 1 2 3 4। यस, फर्स्ट टर्म, फिफ्थ टर्म, समझ रहे हो? फर्स्ट टर्म, फिफ्थ टर्म, देन द नेक्स्ट विल बी व्हाट? 26, 29, 32, 35। फर्स्ट टर्म, अगर ये पहला टर्म है, इफ दिस इज द फर्स्ट टर्म, देन दिस इज द फिफ्थ टर्म, दिस इज द नाइन्थ टर्म। 4 4 के डिफरेंस में आ रहा है, एग्रीड? हाँ या ना? 4 4 के डिफरेंस में आ रहा है, राइट? सो आउट ऑफ 100 नंबर्स, न्यूमरेटर में आउट ऑफ 100 नंबर्स, अगर मैं पहला 2 निकाल दूं x में से 100 में से मैं 2 नंबर निकाल दिया, 8 और 5 को निकाल दिया मैं, तो कितना नंबर्स बचा? 98 नंबर्स बचा, करेक्ट? 98 नंबर्स बचा। इन 98 नंबर्स को मेरे को क्या देखना है? 4 4 के डिफरेंस में देखना है। तो 98 नंबर्स में 4 4 के डिफरेंस में कितने नंबर्स आ जाएंगे? हाउ मेनी नंबर्स? 24 समथिंग। यस, और उसमें अपने को फर्स्ट नंबर भी ढूंढना है, 11 भी इंक्लूड करना है। तो अपन क्या करेंगे? 24 प्लस 1 25। सो k का वैल्यू क्या हो गया? 25। देयर विल बी 25 टर्म्स इन दिस। हाँ बोलो अगर आया समझ में, जल्दी से हाँ बोलो अगर समझ में आया। ठीक है। अरे क्या आयुष, इतना ही क्या? सेवियर नहीं, थोड़ा और भगवान बुला लो। अब तो अगला तो भगवान ही बुला लो मेरे को। क्लियर एवरीवन? 25। ऑल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते हो कि इसका आखिरी टर्म अगर आप ढूंढ सकते हो, इफ यू कैन फाइंड द लास्ट टर्म ऑफ दिस, देन देयर इज नथिंग लाइक इट। यस, लास्ट टर्म अगर आप ढूंढ सकते हो तो कर सकते हो, वरना यही ठीक है। दिस इटसेल्फ इज गुड।
ओके डन। तो अगर पैटर्न ढूंढना है, पैटर्न क्या है, व्हाट इज दिस, 10 + 1, ये क्या है 20 + 3, ये क्या है 30 + 5, तो अपना नेक्स्ट टर्म क्या होगा 40 + 7, ऐसे, ठीक है, जस्ट सेइंग इफ यू कैन यूज दिस ऑल्सो। ओके बस बस विपुल, अरे बस भाई, समर्थ मूवी चेंज कर दी क्या समर्थ, सेट मैक्स से जी सिनेमा आ गए क्या, धमाल में चले गए हेरा फेरी से। मारो डीक्रो राइट आयुष, धमाल अच्छी मूवी थी, धमाल वॉज नाइस। आदि आदि क्या कर रहा था, गाड़ी गाड़ी नहीं बोल सकता था। धमाल वॉज अ नाइस मूवी। वो उसका पूरा फिर उसका सीक्वल पूरा गंदा कर दिया, पूरा सीक्वल गंदा कर दिया। धमाल अगेन, वंस अगेन, कुछ कुछ की कर रहे थे, पूरा गंदा। सेम चीज गोलमाल भी, गोलमाल का फर्स्ट पार्ट अभी तक द बेस्ट बेस्ट, मतलब क्या कैरेक्टर थे उसमें। वो वाला भी वो बंगाली वाला भी, गाड़ी चलती तो नहीं है, उड़ी बाबा कर रहा। चुप चुप के भी अच्छी थी, यस, चुप चुप के वाज आल्सो नाइस। बस ओल्ड कॉमेडी वाज एक्चुअली वेरी गुड, है ना। इसके बाद तो कॉमेडी के नाम पे टाइम पास ही कर रहे थे लोग। जब्बा वाली कौन सी, अब्बा डब्बा जब्बा, फालतू वाज आल्सो गुड या। अभी इतना ग्रेट नहीं है, अभी तो कॉमेडी के नाम पे टाइम पास करते हैं लोग, रीमेक के ऊपर रीमेक। हंगामा वाज आल्सो नाइस या। ऐसे है, बहुत सारी मूवीज है, यस। क्वेश्चन कोई नहीं सॉल्व कर रहा है, ढोल भी नेक्स्ट लेवल है। अभी तक मेरे को वो सीन याद है जहां पे राजपाल यादव का मुंडी घूम जाता है, कि इसको इतना मारा कि उसकी गर्दन घूम गई। राइट अच्छा, मतलब अभी अपन राजीव मसंद खेल रहे क्या, कोई सॉल्व नहीं कर रहा, सॉल्व करो वे क्वेश्चन को। वेदांत सी बोल रहा है, वेदांत से सी 6, आयुष से सी, ऑल राइट। Vipul and Shreyashi are saying B, okay. So we'll do this question, okay. In an increasing arithmetic progression, increasing का मतलब क्या कि D जो है common difference will be greater than or equal to 1, एक से इंक्रीज होगा, दो से इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। If sum of all terms is 105 and the smallest term is 1/6 of the largest term, find A. Yes, so sum of all terms, we don't know how many terms, sum of n terms is equal to what, 105, okay. And they are saying what, smallest term A is equal to 1/6 of the largest term, L का 1/6 है। So we plug this in, sum of n terms is equal to what guys, sum of n terms is equal to what, average, which is first term plus last term by 2 into n, correct. This is equal to 105, बराबर। तो n into a क्या है, l by 6, तो l क्या है 6 times a by 2 into 105 is equal to 105. So what do you get, n into 7a is nothing but 210. So n into a is equal to 30.
करेक्ट. n into a is equal to 30. Yes. What else can be used now? Okay. लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज लास्ट टर्म? लास्ट टर्म इज नथिंग बट a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. डी क्यों लाएंगे यहां पे? डी भी आ रहा है, फिर नया वेरिएबल और आ रहा है. Or maybe after this we can go reverse engineering on this. Let's go reverse engineering on this. A is equal to, if A is equal to, n is equal to 30 by A, है ना? n is equal to 30 by A. ये रहे A के values. Let's start with the middle one, 5. n is equal to 30 by 5. So what is this? 30 by 5 is nothing but 6. अगर number of terms 6 है, first term क्या है? first term 5 है. Okay. And what do we want? Last term is 1/6. तो last term क्या हो गया? 6 times a, है ना? Last term is 6 times a. So last term becomes 30. Yeah? Does this add up? Would this add a common difference? तो कुछ भी हो सकता है फिर. कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई कर लेगा तब तो. Sum of 6 terms is what? 105 बोल रहे हैं. Okay, so we'll check. 105 should be equal to first term plus last term by 2 into 6. That is 105 should be equal to 5 plus 30 by 2 into 6, which is true. 35 into 3 is 105. यहाँ पे अगर मैं 6 भी लूंगा तो भी शायद सेटिस्फाई करेगा. लेट्स चेक. कहाँ हो गया? क्या कहाँ गया भाई? ये रहा. लेट्स चेक विथ 6 ना. If a is equal to 6, तो n हो जाएगा 30 by 6, 5. a अगर 6 है तो लास्ट टर्म आपका 36 है. दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? 30 by 4, which is 7.5. Guys, कोई भी वर्कआउट कर जाएगा. Any number would work out. I think the answer is cannot be determined. The answer has to be cannot be determined. क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दिया है, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दिया है, कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है. यहां पे अगर मैं ढूंढूं, इफ आई फाइंड आउट सम ऑफ 6 टर्म्स, सम ऑफ 5 टर्म्स, इट इज हाउ मच? फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म का एवरेज 42 by 2 is 21 into number of terms 5 is also 105 only. तो कुछ तो इंफॉर्मेशन देना चाहिए था उनको. दे डिडंट गिव इट. दे शुड हैव गिवन सम इंफॉर्मेशन अबाउट डी, कि या तो डी इंटीजर है, ऐसा कुछ, क्योंकि तब तो 4 भी काम कर लेगा.
4 काम नहीं करेगा, राइट? 4 wouldn't work because number of terms will be 30 by 4 which wouldn't work. So 4 को छोड़ के बाकी कुछ भी हो सकता था. Okay? So cannot be determined is the answer for this. Alright? चलो ये अपन ने कर लिया. Last question of the day. आखिरी question, last. Let's go. तो जिन्होंने प्राची, श्रेयसी, विपुल, आयुष, वेदांत, आई होप यू अंडरस्टूड दिस, है ना? इसमें कोई आपको कोई इश्यू नहीं है ना? समझ गए ना वो वाला? मिसिंग इंफॉर्मेशन है बस, है ना? चलो आखिरी क्वेश्चन कहाँ है? समर्थ कहाँ है भाई? समर्थ को बुलाओ, आखिरी क्वेश्चन है, बुलाओ उसे, बोलो, कोई बोलो भाई समर्थ को क्या आखिरी क्वेश्चन है, जल्दी से. विपुल से सी. लॉग बुक लेके खड़ा होगा, करेक्ट, एकदम सही प्राची, एकदम सही. वो घड़ी देख रहा है, वो घड़ी देख रहा है कि हाँ अभी वो वॉचमैन जाएगा बेल के पास, अभी वो वॉचमैन वो डंडी उठाएगा, फिर वो बेल पे मारेगा. वर्षिनी सेज 0. ओके. मनजोत सेज 0. प्राची सेज 1. पहले भाग गया, ये रहा, आ गया. घंटी बजा दो समर्थ, घंटी बजा दो भाई. आखिरी क्वेश्चन. चलो, so what's the scene if the arithmetic mean between x and y? Arithmetic mean of x and y should be equal to what? X plus y by 2. Correct? They're asking what is the value of k in this particular situation. This is equal to x plus y by 2 is equal to x to the power k plus 1 plus y to the power k plus 1 by x to the power k plus y to the power k. इसको आप अभी don't solve this, right? Go by reverse engineering. इसको बैठ के solve मत करियो, reverse engineering से करेंगे, ठीक है? First thing to try would obviously be 1 और 0. मिडिल वाले टर्म्स जो है 1 या 0 में से कोई भी. 0 अगर प्लग इन करेंगे, if k is equal to 0, then what would we get? X to the power k plus 1, which is 0 plus 1, 1, plus y to the power 1 by x power 0, which is 1 plus 1. Is this equal to the arithmetic mean of x and y? Yes, this is our answer. वहीं पे अगर मैं k को 1 ले लूं तो क्या हो जाएगा? I will get x square plus y square by x plus y. This need not be equal to x plus y by 2. Need not be equal to x plus y by 2, है ना? So 1 गया, because not always. 1 के केस में not always. Maybe sometimes yes, could be, but not always. Same thing with 2 and minus 1. Done? minus 1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा? If k is equal to minus 1, अपना क्या हो जाएगा? x to the power 0 plus y to the power 0 by x to the power minus 1 plus y to the power minus 1. This will give us 2 by 1 by x plus 1 by y, which is equal to what? Harmonic mean, है ना? 2 times xy by x plus y. ठीक है? So none of these would work, only 0 would work. That is our answer. घंटी बज गई, जिंगल. Very good, superb. चलो, with this we'll wrap up arithmetic progression. Plus unlimited live classes, theory classes, recorded classes. You can watch any number of classes. You can even download the classes. Unlimited weekly tests, full length sectionals, mocks, other management entrance test के mocks, all of that. You will get PDF के study materials. Yes, directly downloaded from the Educator session. Unlimited access to everything that's available on the app, including ask a doubt feature through a
रेज अ हैंड फीचर, मतलब आप हाथ उठाओगे तो द एजुकेटर कैन गिव यू परमिशन टू टॉक इन द क्लास. आपको नहीं, मेरे को नहीं, सबको सुनाई देगा आप क्या पूछ रहे हो, है ना, जस्ट लाइक इन अ रियल लाइफ क्लास. एंड अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस, बैचेस, इंडिविजुअल कोर्सेस, कितने भी बैचेस में ज्वाइन करो, एजुकेटर्स को फॉलो करो, ऑल ऑफ दैट. इसके साथ साथ your iconic subscription gives you personal guidance, study planner, one-on-one live mentoring, test analysis and experts के guidance. ठीक है, don't forget to use my code SURANALIVE when you take the subscription. If you have any questions regarding the subscription, please get in touch with me, I'll help you out. Alright, आज 8 o'clock का क्लास नहीं है प्राची, मंडे को करेंगे. Our next 8 PM class is on Monday. Okay, right. Vipul. Okay guys, I'll see you all tomorrow at 12 PM on surds and indices. Okay, 5 PM plus I'll let you know. ठीक है, चलो guys, घाघरा चोली चाहिए. I know समर्थ. right. मैं सब जानता हूँ. ओके गाइज, बाय 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 बाय. थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट डे अहेड. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू सो मच. बाय बाय. कीप लर्निंग. लेट्स